سواری حسین کی، شان ہے دو جہاں میں نیاری حسین کی، ارے حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین کی، ارے مظلوم کربلا کی عظمت تو دیکھ کونین کا رسول ہے سواری حسین کی۔ دامنے عقل کو وہ کبھی چاک نہیں کر سکتا، دامنے عقل کو وہ کبھی چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا احتراق نہیں کر سکتا۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ پھر بھی بڑا شروعات آپ کو شاہدات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دامنے عقل کو وہ کبھی چاک نہیں کر سکتا، کیا جی؟ دامنے عقل کو وہ کبھی چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا احتراق نہیں کر سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہو نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری! واہ ماشاءاللہ جیو۔ اے بنت پیغمبر اگر تم ماں میں نہ ہوتی، اے بنت پیغمبر اگر تم ماں میں نہ ہوتی تو جنت کسی کے ماں کے پیروں میں نہ ہوتی۔ اے بنت پیغمبر اگر تم ماں میں نہ ہوتی تو جنت کسی کے ماں کے پیروں میں نہ ہوتی، تو جنت ہر کسی کے ماں کے پیروں میں نہیں ہے، جنت تو اس ماں کے پیروں میں ہے جو زہرا کے پیروں میں ہے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مجلس حسینیت بچانے کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ مجلس حسینیت بچانے کا نام ہے، مجلس یزیدیت مٹانے کا نام ہے۔ بے شک۔ مجلس حسینیت بچانے کا نام ہے، مجلس یزیدیت مٹانے کا نام ہے۔ خود نے سجدہ کر دیا در شبیر پر آ کر تو جنت حسین کے گھر پہ آنے کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ وہ حسین 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 دو نور ایک مک ہوئے، دو نور ایک مک ہوئے، تیرا بنوی من نہ پیا۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، انہیں رب دی نماز تے پڑھی نہیں، 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 تے سجدہ کے داریا۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ صلوات آپ کو شاہدہ۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ہوش مرتا ہنس ہنس کے دل کر وہ بلا ڈالے، او میں یوسف ماریا پنج تن دوج دی عمر 18 سال رجدہ پیو چھکسی پل برچی داؤ مر ویسا پتر دے نام لے۔ یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت ارسلان علی، اور اب میں ملتمس ہوں حرف دوئم کی حیثیت سے مداخواں جناب محمد والے محمد توصیف حیدر سے، ان کے فوراً بعد حرف آخر کی حیثیت سے جناب
آصف رضا بخاری صاحب جو کہ مصاحب فضائل بیان کریں گے. صلوات پڑھ لیجیے بہت بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پاک جانے کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. اور بلا کا جام پلایا ہے اور بلا کا جام پلایا ہے یا علی کہہ کر. لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. جی بول کے دل کھول کے نعرہ حیدری. سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا. سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا. کفن ہٹا کے بتایا ہے یا علی کہہ کر. لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. عالم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں. عالم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں. علم کو ہم نے اٹھایا ہے علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کر. لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. در حسین سے فطرت کو پر ملیں گے ضرور. در حسین سے فطرت کو پر ملیں گے ضرور. فلک سے آج وہ آیا ہے فلک سے آج وہ آیا ہے یا علی کہہ کر. لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت مداح خواں توصیف حیدر. اور اب میں حرف آخر کی حیثیت سے ملتمس ہوں جناب علامہ آصف بخاری سے کہ وہ آئیں اور پوچھا امام زین العابدین بیمار کربلا کے فضائل و مصائب بیان کریں. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھ لیجیے باوال بلند تر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے صلوات پڑھیں جیسے وہ لائق صلوات ہے. سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا
रहमतन लिल आलमीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुहयी अल्लाह, मुगीत अल्लाह, समी अल्लाह, बसीर अल्लाह, अलीम अल्लाह, खबीर अल्लाह, हई अल्लाह, क़य्यूम अल्लाह, मुइज़ अल्लाह, मुज़िल अल्लाह, रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह। परवरदिगार आलम, आप तमाम साहिबान इल्म व मारिफत, बरादरान ईमानी व इस्लामी, मुहिबान अहले बैत अतहार, मवालियान हैदर करार, अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान शहीद शुहदा, परवरदिगार आलम आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। परवरदिगार आलम, अहले बैत अतहार के सदक़े में मेरे प्यारे भाई शहजाद भाई का ये सालाना पुरखुलूस एहतमाम व सलाम परवरदिगार आलम अपनी बारगाह अक़दस में मक़बूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम इनके रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, बख्त में इजाफ़ा फरमाए। जो भी नेक और शदी हाजात है उसे अपनी बारगाह अक़दस में मक़बूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगारा, पूरी कायनात आदम व आलम में जहाँ जहाँ पे भी सरकार सय्यदुल शुहदा के ज़िक्र के सिलसिले जारी शारी हैं, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह खुद उनकी मुहाफ़िज़त फरमाना। हम तमाम मुसलमान भाइयों को इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद के साथ अपनी ज़िंदगियों को सीरत अहले बैत के साए में बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। लाखों दुआओं की दुआ है, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह, अहले बैत इत्तेहाद के सदक़े में हमारे वारिस का ज़ुहूर अता फरमाना। हम सबको ज़ियारत इमाम ज़माना नसीब फरमाना। इमाम ज़माना के आवान अनुसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। सरकार के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा के हमारी आँखों को उनकी नूर से मुनव्वर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह, बिलखुसूस अहले खाना के जितने भी मरहूमीन व मरहूमात इस जहान में पानी से कूच कर गए हैं, परवरदिगारा सबके दराजात को बुलंद फरमाना। दुरूद इस कदर बुलंद आवाज़ से पढ़िए कि आले मोहम्मद राज़ी हो, खुशनूद हो जाएं। अज़ीज़ान किरामी कदर, मोहतरम सामीन, मेरा वो मालिक अल्लाह, मेरा वो खालिक अल्लाह हुज़ूर कायनात से खिताब फरमा रहा है, और वो जब भी कायनात से खिताब करता है तो बग़ैर वसीले के खिताब नहीं करता। तवज्जो है साहिबान की। कायनात से खिताब करने के लिए वो वसीला उसे करार देता है जिसने बरसरे ज़मीन पहला पहला लफ्ज़ जिस तैयब ताहिर पाक मुनज़्ज़ा आगोश में बैठ के कहा था, उन्हें सरकार अबू तालिब कहते हैं। सरकार हसनैन के नाना सरकार मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकले हुए वो लफ्ज़ जो कायनात के खालिक अशकोल में रिज़्क़ हिदायत बांटते हैं, हुज़ूर अल्लाह उन अल्फाज के मजमूए को कुरान कहता है। कुरान ऐसी किताब है जिसे देखना सवाब है। कुरान ऐसी किताब है जिसे मस करना सवाब है। कुरान ऐसी किताब है जिसे पढ़ना सवाब है। कुरान ऐसी किताब है जिससे हिदायत लेना ज़रूरी है। तवज्जो है ना साहिबान की? आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। मेरे साथ थोड़ा सा मिलेंगे तो लुत्फ़ ज़्यादा आएगा। कुरान भाईजान ऐसी किताब है जिसे देखना सवाब है। कुरान ऐसी किताब है जिसे मस करना सवाब है। कुरान ऐसी किताब है जिसे छूना सवाब है। लेकिन याद रखिएगा, कुरान विरसा है। समझो नहीं आपने फरमाई, मैं जुमला कह गए और आप पीछे रह गए। कुरान है विरसा, तो अंदाजा कीजिए जब विरसा इतना बुलंद हो, जिसे देखना सवाब हो, जिसे छूना सवाब हो, तवज्जो फरमा रहे, जिसे पढ़ना सवाब हो, जब विरसा इतना बुलंद है तो वारिस कितने बुलंद है। कुछ नहीं, अब बहुत शाद है भाईजान। जब विरसा इतना बुलंद हो कि जिसे देखना सवाब हो, जिसे पढ़ना सवाब हो, जिसे मस करना सवाब हो, जब विरसा इतना बुलंद हो तो वारिस कितने बुलंद हो गए। परवरदिगार आलम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया। तवज्जो है ना साहिबान की? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बड़े खूबसूरत इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ रसूल, हमने तुझे
कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। मैं इब्तिदाई मजलिस में एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं। अल्लाह ने बड़ा इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह ने सच्चे को बड़ा इख्तियार दिया है। अगर आपकी तवज्जो है तो जुमला कहूँ, मेरे रसूल ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। तवज्जो फरमाइए, मेरे रसूल ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अगर आपकी तवज्जो है शहजाद भाई, मेरे रसूल ने इशारा किया, तख्त जड़ों समेत मेरे मुर्शिद के कदमों में आ गया। भाई तवज्जो फरमाना, मैं हमेशा की तरह जब भी ये खुलूस होता है, जब बानी खुलूस के साथ बुलाए, पढ़ने वाला खुलूस के साथ पढ़े, तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए फिर लुत्फ वक्र ही हो जाता है। मैं इशारा कर रहा हूँ, तवज्जो फरमा रहे, पहला जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मेरे रसूल ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। मेरे रसूल ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। NAS से एक कंपनी है अमेरिका की, NAS से नासा, तवज्जो है हुजूर, अमेरिका में ये कंपनी है नासा। नासा का काम ये है, ये चांद पे जाती है, वहां पे जाके रिसर्च करती है क्या यहाँ पे पानी है कि नहीं। तवज्जो फरमाना, NAS से अमेरिका कंपनी है, इसका काम सिर्फ इतना है, ये चांद पे जाती है और चांद पे जाके ये क्या करती है, तहकीक करती है क्या यहाँ पे पानी है कि नहीं है, यहाँ पे जिंदगी के आसार है कि नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सारे खड़े पे हो जाओ, हक अदा नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, यहाँ पे पानी है कि नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, क्या यहाँ पे इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं। हुजूर जो पहली रिसर्च भेजी थी ना ऊपर से, नासा वाले जो बंदा पहला गया था, जो उसने पहली रिसर्च भेजी थी, वो कुछ और नहीं थी, खुदा की कसम उसमें लिखा हुआ था, न रत्ती भर कम न रत्ती भर ज्यादा, न रत्ती भर कम न रत्ती भर ज्यादा। चांद के सीने पे एक लकीर है जो बता रही है पहले किसी ने चांद को तोड़ा है, फिर जोड़ा है। जी बिस्मिल्लाह। नासा कंपनी है शहजाद शाह जी, नासा कंपनी है, जो पहली रिपोर्ट आई थी ना, उसने कहा ना रत्ती पर कम ना रत्ती पर ज्यादा। चांद के सीने पे एक लकीर है जो बताती है पहले किसी ने इसको तोड़ा है, फिर इसको जिसने तोड़ा और जोड़ा है ना उसे मोहम्मद कहते हैं। और फितरत चेंज नहीं होती। मैं जुमला कह गया, नेचर चेंज नहीं होती, फितरत जो है ना, फितरत जिसे कहते हैं, फितरत चेंज नहीं होती, नेचर तब्दील नहीं होती। तवज्जो फरमा रहे, ये कानून है, लेकिन जिसके हाथों पे आके नहीं, तवज्जो फरमाई, बात खोल नहीं मुझे पर भाई, पत्थर का ना नाक है ना मुंह है ना कान है ना पत्थर की जुबान है, पत्थर का काम है खामोश रहना। अगर किसी के हाथों पे आके बोल पड़े, अगर किसी के हाथों पे आके, इसे कहते हैं फितरत का चेंज होना। अगर किसी के हाथों पे, और यकीनन ये आज नई बात नहीं मैं कहने लगा, मैं जब से 4-5 साल या इससे भी ज्यादा हो गए ये सालाना मजलिस मेरे भाई करवाते, यकीन मानिए अजीब लुत्फ होता है। लोग मार्फत वाले हो, काम भी हो तो लुत्फ आ जाता है। तवज्जो फरमाना शर्त है, और जिक्र उनका हो, जिक्र उनका हो, तवज्जो फरमाइएगा, जिक्र उनका हो, जिक्र उनका हो कि जिनके पसीने के कतरों से नबी बने। भैया आपके मुकद्दर है, मुझे आज तक बात समझ नहीं, मैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाता हूँ, बड़ा बड़ा मजमा होता है, लेकिन मुझे भी जो पढ़ने का लुत्फ आता है ना, प्यारे ये खुलूस है। और मैं जुमला कहता हूँ भाईजान, बंदा बड़ा सोना है ना, मैं तारीखी मजलिस पढ़ के जाना चाहता हूँ, बंदा बड़ा सोना शहजाद भाई, बंदा बड़ा सोना हो ना तो लोग कहते हैं बैजा बड़ा यूसुफ। बंदा बड़ा सोना हो, बंदा बड़ा खूबसूरत हो ना तो लोग कहते हैं बैजा बड़ा यूसुफ। कहाँ उसने यूसुफ, कहाँ उसने मुस्तफा। आप नहीं समझे जुमला, फिर मुझे कहना पड़ गया, बंदा बड़ा ही खूबसूरत हो ना तो लोग पता क्या कहते हैं, लोग पता क्या कहते हैं, बैजा वो दादू यूसुफ, और कहा उसने मुस्तफा।
کہا اس نے یوسف، میں اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ کہوں، جو محبوب زلیخا، سارے کھڑے پہ جو آنکھ نہیں ادا سکتا، جو محبوب زلیخا ہو اسے یوسف کہتے، جو محبوب خدا ہو بھائی توجہ فرمانا، یار جو محبوب زلیخا ہو، توجہ فرمانا، جو محبوب زلیخا ہو اسے یوسف کہتے، جو محبوب خدا ہو۔ نہیں توجہ فرما رہا ہے، اور میں جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جس کو دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا جگر کٹ جائے۔ خوش رہے آباد و شاد، جس کو توجہ فرمائیے گا، جسے دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں نا اسے یوسف کہتے، اور جس کی انگلی کے اشارے سے ہلکی سی جنبش سے، میں توجہ فرما رہا ہے، جس کی انگلی کی ہلکی سی جنبش سے چاند کا جگر کٹ جائے۔ آپ نے استقامت اچھا، اگر آپ نے حق ثابت کیا ہے نا تو پھر جملہ اس سے بڑا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑا یوسف ہونا تھا، بڑا یوسف، اور کہاں اس نے مصطفیٰ، کہاں اس نے یوسف، میرا مصطفیٰ چلے اور مصطفیٰ کی نلین پاک کو جو گرد لگے وہ گرد اڑ کے جس چہرے پہ پڑے اسے فخر یوسف بنا۔ بھائی توجہ فرما رہے، لیکن میں جملہ کہتا ہوں، بھائی توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ یہاں پہ رک کے کہتا ہوں اور بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، خبردار کبھی بھول کے بھی تکبر نہیں کرنا۔ توجہ فرمانا، اگر اللہ عزت دے دینا، اگر اللہ 4 پیسے دے دینا پھر عام نہیں بننا۔ اگر رات کو جو بندے مرکز میں تھے، رات کو میں نے مرکز میں مجلس پڑھی تھی، وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا اور یہاں پہ بھی ایک جملہ تجدیداً کہتا ہوں، خبردار اگر اللہ 4 پیسے دے دے نا نمرود اور فرعون نے بننا۔ نہیں توجہ فرما رہے، میں نے کہا تھا مولا مشکل کشا وہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 1000 غلام کو خرید کے آزاد کیا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا علی ابن ابی طالب جنہوں نے 1000 بندے کو خریدا، غلام کو خرید کے آزاد کیا، مولا حسن بھی کرتے تھے، مولا حسین بھی کرتے تھے، لیکن جس شہنشاہ کی آج مجلس ہے دوسرے نمبر پہ مولا امام زین العابدین ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو، غلاموں کو خریدتے اور آزاد کرتے، آزاد کر کے دنیا کو بتا دیا ہے، دنیا کو بتا دیا اگر پیسے آ جائے نا تو رشتہ داروں کو غلام نہیں بنانا۔ یہ میرا میسیج ہے، اگر اللہ عزت دے نا 4 پیسے آ جائے نا تو لوگوں کو غلام نہیں بنانا۔ نہیں توجہ فرما، میں اس لیے کہہ رہا ہوں خبردار کبھی بھول کے بھی تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ حضور تکبر صفت الہی ہے۔ میں جملہ بہت بڑا کہنا چاہتا ہوں، یقین مانو سارا پنڈال کھڑا بھی ہو جائے، صبح تک نعرے بھی لگاتے رہو، خدا کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، خبردار خبردار کبھی بھول کے بھی نا، کبھی بھول کے بھی تکبر نہیں کرنا۔ اس لیے تکبر سوائے خدا کے کسی اور کو بھاتا نہیں ہے۔ اگر بندہ تکبر کرتا ہے نا وہ بڑا بادشاہ ہے، منٹ میں بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے۔ 1 منٹ نہیں لگتا، توجہ فرمانا، 1 منٹ نہیں لگتا، کبھی تکبر نہ کرنا، 1 منٹ نہیں لگتا، 1 منٹ نہیں لگتا، وہ بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ اگر نہیں سمجھائی تو میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں، اگر تکبر نہیں کرنا، خبردار تکبر، پتہ ہے کیوں؟ جو کل تک شہزادی تھی نا آج فٹ پاتھ پہ تھی، اور جو بازار مصر میں اٹی کے پاؤں بکنے آیا تھا نا، جی بسم اللہ، خوش رہے خوش رہے، آباد و شاد رہے۔ تکبر نہیں کرنا، جو کل تک شہزادی تھی نا وہ آج فٹ پاتھ پہ تھی، اور جو کل تک بازار مصر میں اٹی کے پاؤں، بابا جی اٹی کے پاؤں بکنے آیا تھا نا وہ آج تخت پہ تھا۔ اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہے زلیخا، آنکھیں کام نہیں کرتی، بغیر عصا کے چل سکتی نہیں، کمزور اتنی ہے جب تک عصا ہاتھ میں نہ ہو چل نہیں سکتی ہے، فٹ پاتھ پہ کھڑی ہے، ادھر سے یوسف کی سواری گزری۔ اگر آپ کی توجہ ہو، میں پچھلی
मजलिस बहुत बड़ी पढ़ के गया था, लेकिन ये मजलिस उससे भी बड़ी होनी है। तवज्जो आपने फरमाया, फुटपाथ पे खड़ी है, असा हाथ में है, आंखें है नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। इधर से हजरत यूसुफ की सवारी गुजरी, जैसी हजरत यूसुफ की सवारी गुजरी है ना, लुत्फ लेना यार खुदा के। शहजाद भाई साथ वाले के कंधे को हिला के कहती है, यहाँ से यूसुफ तो नहीं गुजरा। भाई तवज्जो तवज्जो, जैसे ही हजरत यूसुफ की सवारी गुजरी ना, साथ क्योंकि आंखें नहीं थी ना, साथ वाले के कंधे को हिला के पता क्या कहती, क्या यहाँ से यूसुफ तो नहीं गुजरा? उसने कहा गुजरा तो यूसुफ है, तेरी तो आंखें नहीं, तुझे कैसे पता चला? कहती इन्नी अशम्मो इंदा किराई हतन तय्यबा, आंखें नहीं तेरा से खुशबू बता रही है कि गुजरने वाला। भाई तवज्जो फरमाना, समझ आ रही है ना? तवज्जो फरमा। उसने कहा तुम्हारी तो आंखें नहीं है, तुझे कैसे पता चला? तुम्हारी तो आंखें नहीं है, तुझे कैसे पता चला? कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ये आंखें नहीं है, ये तो है। और तवज्जो फरमाओ यार, तवज्जो फरमाना। अगर लुत्फ लेना चाहते हो, जुमला सुनना तवज्जो फरमाना। पता क्या कहा? कहती तुम्हारी तो आंखें नहीं है, तुम्हारी तो आंखें नहीं है, तुझे कैसे पता चला? कहती है इसमें कोई शक नहीं है, मेरी आंखें नहीं। इन्नी अशम्मो इंदा किरायहतन तय्यबा, इन्नी अशम्मो, बेटा मेरी तरफ देखो, इन्नी अशम्मो इंदा किरायहतन तय्यबा, खुशबू बता रही है गुजरने वाला यूसुफ है, खुशबू बता रही है गुजरने वाला। उसने कहा हाँ गुजरा तो यूसुफ है। एक दफा कहा गुजरा तो आशिक थी ना, नहीं तवज्जो फरमा रहा है, नहीं तो आशिक थी ना, आशिक यूसुफ की आशिक थी। तो लगो यार मैंने अभी तो कहा था जो महबूब जुल्फ़ा हो, आशिक थी ना, लेकिन सच्ची आशिक थी, आशिक थी, हुजूर आशिक थी। उसने कहा चलो ठीक है, अगर यूसुफ गुजरे ना आओ देखा ना ताओ देखा। कहती पीछे हट जाओ, आज मैंने मिलना जरूर है। जब कहा ना आज मैंने मिलना जरूर है, बंदा आगे बढ़ा। उसने कहा तेरी अकल तो ठीक है, तेरी अकल तो ठीक है, तुझे पता नहीं है वो वक्त का बादशाह है, इतने सिपाही है, प्रोटोकॉल है, फौजी है, और घोड़ों की टापों के नीचे, घोड़ों की टापों के नीचे आके मर। कहती आज मरना कबूल है, मिलना जरूर है। तवज्जो है भाई, लुत्फ आ रहा है, समझ आ रही है? इसे आशिक हकीकी कहते हैं, इसे आशिक हकीकी कहते। पता क्या कहा? क्या कहा? कहती है चाहे मर भी जाओ, घोड़ों की टापों के नीचे भी आ जाओ, लेकिन आज मिलना जरूर है। ना आओ देखा ना ताओ देखा। एक दफा जाने लगी, जैसे जाने लगी ना ठीक हो गया, जाने लगी ना जैसे जाने लगी। अब बंदों ने कहा रुक जा, कहीं मर तो नहीं जाना, नीचे आ जाएगी। उसने कहा आज मरना कबूल है, आज मरना कबूल है। आशिक थी ना, सच्ची आशिक थी, आज मरना कबूल है, लेकिन मैंने यूसुफ से मिलना जरूर है। इतना गलत, जब यूसुफ से मिलना जरूर है। एक दफा आगे बढ़े, शोर शराबा हुआ, आवाज वहां पे पहुंची जहां पे हजरत यूसुफ थे। हजरत यूसुफ ने पूछा क्या हुआ? कहा जी एक बूढ़ी माई है, कहती है चाहे मर भी जाओ आज मिलना जरूर है, आज मिलना जरूर है। नहीं तो जो फरमाना आज मिलना जरूर। जब कहा ना अच्छा अगर ये बात है, बनफ्स नफीस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी थे, वक्त के बादशाह भी थे। मेरे प्यारे भाई एक दफा सवारी से खुद नीचे उतरे, खरामा खरामा चल के वहां पे आए जहां पे जुलेखा थी। एक दफा सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, सर से तवज्जो फरमाइएगा, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक देखा और फिर सिर्फ इतना पूछा अंते जुलेखा, क्या तो जुलेखा तो नहीं है? क्या तो जुलेखा? मैं सूरह यूसुफ पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। अंत जुलेखा, क्या तू जुलेखा तो नहीं है? जब पूछा ना क्या तू जुलेखा तो नहीं है, उसने कहा नाम या यूसुफ, हाँ 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 यूसुफ, मैं वही जुलेखा। तवज्जो फरमाना, मैं वही जुलेखा हूँ। मैं वही जुमले बहुत बड़े कहने लगा हूँ जो जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब कहा ना हाँ हाँ मैं वही जुलेखा हूँ, पता है क्या कहा? अगर तू वही जुलेखा है, तेरा ये हाल किसने बनाया? नहीं तवज्जो, पीछे रह गए। मैं इससे बड़ा जुमला कहना चाहता हूँ, पीछे रह गए। जब कहा ना अंत जुलेखा, क्या तू जुलेखा है? कहती नाम या यूसुफ, हाँ हाँ यूसुफ मैं जुलेखा। जब पूछू ना अच्छा अगर तू जुलेखा है तो तू इतना बता ये तेरा हाल किसने बनाया? ये तेरा हाल, कहते तेरे हुस्न ने, तेरे हुस्न ने, तेरे हुस्न ने। नहीं तवज्जो। जब कहा ना तेरे हुस्न ने, मत्थे पे हाथ मार के कहते अभी तो नौकर को देखा है तो ये हाल है। अगर मेरे आका मोहम्मद को है
काम तो मुझे बीमार कर देगा। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा भाई, तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा? तेरे हुस्न ने मत्थे में हाथ मार कर, हजरत यूसुफ मत्थे में हाथ मार के कहते हद नहीं हो गई, अभी तो तूने नौकर के देखा, अगर राहत आशिकीन को देख लेती, मुराद मुश्ताकीन को देख लेती, सिराज सालिकीन को देख लेती, इस्माइल मुकर्रबीन को देख लेती, शम्सुल दुहा, बदर तुजा, नूरुल हुदा, कामिल वरा, इस्माइल ज़ुल्फ़, जमील अश्याम, शफ़ीउल उमम, साहिबुल जूद वल करम, अल्लाह हो, आसिम हो, व जबरील हो, खादिम हो। और क्या हो गया तुम्हें अगर उसे देख लेती जिसके नौकर का नाम जबरील है? भाई ये आपके मुकद्दर है, ये आपके नसीब है। इतनी बड़ी मजलिस सामुदाय में होती नहीं है। तवज्जो फरमाइए। अभी तो तूने नौकर को देखा है, अभी तो नौकर को देखा है, अभी तो नौकर को तवज्जो फरमाना यार, उधर छठो आशिकीन को देख लेती, मुराद मुश्ताकीन को देख लेती, शम्सुल आरिफीन को देख लेती, इस्माइल मुकर्रबीन को देख लेती, शम्सुल दुहा, बदर तुजा, नूरुल हुदा, कामिल वरा, इस्माइल आओ अली वालों से मोहम्मद सुनो। जियो शाह जी, वाह वाह। अली वालों से मोहम्मद सुनो, अली वालों से मोहम्मद सुनो। हमने अली के कहने पे मोहम्मद को नहीं माना, मोहम्मद के दिखाने पे अली को माना। नहीं, वाह वाह वाह, जियो शाह जी। जो है अगर मेरी वैसे आवाज आ रही है तो इसे छोड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बरखुशूद मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तक सलावत। जवाब पढ़ लीजिए। ऐसे सलवार पढ़े जैसे लायके सलवार है। भाई तवज्जो है। क्या पूछा? कैफा हालों के, ये तेरा हाल किसने बनाया? गल बोलते नहीं देगा यार, ये तेरा हाल किसने बनाया? जब कहा ना ये तेरा हाल किसने बनाया, कहा तेरे हुस्न ने। मत्था पे हाथ मार के कहते अगर राहत आशिकीन को देख लेती, मुराद मुश्ताकीन को देख लेती, शम्सुल आरिफीन को देख लेती, इस्माइल मुकर्रबीन को देख लेती, अगर शम्सुल दुहा, बदरुल तुजा, नूरुल हुदा, कामिल वरा, इस्माइल ज़ुल्फ़, जमील अश्याम, शफ़ीउल उमम, साहिबुल जूद वल करम, अल्लाह हो, आसिम हो, व जबरील खादिम हो, अज़राक मरकब हो, व मेराज सफर हो, तवज्जो फरमाए, वल मदरूद मक़सूद हो, वल मक़सूद मौजूद हो। तवज्जो अगर उसे देख लेती जिसके खादिम का नाम जबरील है, अगर उसे देख लेती, तवज्जो फरमाइएगा, जिसकी सवारी का नाम बुराक है, अगर उसे देख लेती, जिसके मुकाम का नाम सिदरा है, अगर उसे देख लेती फिर तेरा क्या होता? कहती अंता सिद्दीकुन, तू सच्चा है। भाई तवज्जो, कहती हाँ तू सच्चा है, तू सच्चा है। जब कहा ना अगर मेरे आका, मेरे मौला महबूब रब्बानी को देख लेती, माशूक खुदा को देख लेती, फिर तेरा क्या होता? कहती है अंता सिद्दीकुन, तू सच्चा है, तू सही कह रहा है, तू सच्चा है, तू सही कह रहा है, तू सच्चा है, तू सही कह रहा है। हज़रत यूसुफ पता क्या कहते? अगर मैं सच्चा हूँ, सही कह रहा हूँ, तुझे किसने बताया? जी बिस्मिल्लाह, तुझे किसने बताया? तुझे किसने? जब कहा ना अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं सच्चा हूं, तुझे किसने बताया? तुझे किसने बताया? कहा जैसे ही तूने सोने का, मीठे का, मदनी का, जैसे ही तूने सोने, मीठे, मदनी, मंठार का नाम लिया ना, मेरी आंखों में एक नूर की तजल्ली गुजरी है। मेरी आंखों में, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मेरी आंखों में एक नूर की तजल्ली, जैसे कहा ना मेरी आंखों में एक नूर की तजल्ली गुजरी है। अल्लाह ने कहा जबरील जी रब्बे जलील, हुण बारी आ गई अब मेरे माशूक दी। नहीं तवज्जो फरमा रहा है, जबरील जी रब्बे जलील, हुण बारी आ गई मेरे सोने दी, मेरे मिठे दी, अहमद मुरसल दी, मुर्तजा दी, मुश्तबा दी, मुस्तफा दी, हसनैन के नाना दी। भाई तवज्जो भाई
बात ही कुछ ऐसी है, तारीखी लम्हे हैं, हाँ जी, सुभान अल्लाह। तारीखी गुफ्तगू है। तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। जब पता क्या कहा उसने, कहा अंता सिद्दीक तू सच्चा है। तो हजरत ने पूछा अगर सच्चा है तो तुझे कैसे पता चला? कहा जैसे तूने नाम लिया, आंखों के सामने से एक नूर की तजल्ली का नाम आना था, फिर वो भी ना रह सका। जिसका दिल नहीं था ना, छाड़ दे सही। वो दिल ने भी ये कहना शुरू किया अब दिल नहीं रहता। नहीं तवज्जो फरमाए, अगर उसका दिल करार देंगे तो जिस्म का होना जरूरी है। जिस्म उसका होता है जो मुजस्सम हो, जो मुजस्सम हो वो मुहताज होता है, जो मुहताज हो वो बंदा होता है, खुदा नहीं। जी बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमाए, क्या कहा अंता सिद्दीक तू सच्चा है। कहा अच्छा अगर हम सच्चे तुझे किसने बताया? भाई तवज्जो फरमाना, अगर हम सच्चे हैं तुझे किसने बताया? कहा तवज्जो फरमाई, एक नूर की तजल्ली गुजरी है, एक नूर की तजल्ली, तवज्जो फरमाना, एक नूर की तजल्ली गुजरी है। तजल्ली का नाम आना था, अल्लाह से न रहा गया। कहा जबरील जी रब्बे जलील और साढ़े सोने की बारी आ गई है, मेरे माशूक की बारी आ गई है, मेरे महबूब की। नफ्स नफीस जा हजरत यूसुफ से कह दे, क्या कहूँ मालिका? कहा यूसुफ से कह, हाथ तू उठा, इसकी जवानी की दुआ तू कर। नहीं तवज्जो फरमाई, जा इससे कहते जाके, इसने मेरे सोने का, मीठे का, मदनी का, मुस्तफा मुज्तबा मुर्तजा का नाम लिया। राहत अल्लाह शिकीन मुरादल मुश्ताकीन शमसल आलमीन शमसल तहा नूरल हदा काबिल बराम इस्माइल जुलम जमील शम शफीउल उमम साहिब जुद वल करम अल्लाह हसन व जबरील खातिर। इसने मेरे सोने का नाम लिया, मेरे माशूक का नाम लिया, इसने नाम लिया। अब जा हजरत यूसुफ से कह सवारी भी छोड़ दे, प्रोटोकॉल भी छोड़ दे। नहीं तवज्जो फरमा रहा है, नहीं तो कहा हजरत यूसुफ से कह दे आज तो अपनी सवारी भी छोड़ दे, प्रोटोकॉल भी छोड़ दे, बादशाहत भी छोड़ दे। अब क्या करूं परवरदिगारा? उसे कह हाथ उठा। हाथ उठाएगा, कहा हाथ उठा ना, उसे कह हजरत यूसुफ से कह इसकी जुलेखा की जवानी की दुआ तू कर, जिसका नाम लिया है उसके सदके में जवानी हम देंगे। तवज्जो फरमाना, इनसे कह दे हाथ उठा। भाई हाथ उठे मोहम्मद के सदके से हाथ उठे। अभी उठे हुए हाथ नीचे भी आए थे, जुलेखा जवाब हो गई। और जुलेखा जब फिर समझ नहीं आई, याद रख लेना, जो जवानी को बुढ़ापे में बदल दे उसे हुस्न यूसुफ कहते हैं, और जो बुढ़ापे को जवानी दे दे उसे हुस्न मुस्तफा। बॉबी जज़ाकल्लाह। बॉबी जो है ना सलवात पढ़ लीजिए, बात नीचे रखो बेटा, नीचे रखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई अगर टाइम है तो जुमला फजाइल का और कहूँ। हाँ सर, हाँ माशाल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, हमने इन्हें इनके नाम की वजह से नहीं माना। यकीन मानो शहजाद भाई, मैंने ये जुमला जो अभी फौरन आया ना सैटेलाइट से, पता नहीं आप क्या करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती। मेरे आने से पहले कोई तस्वीर पकड़ के विरद करते हैं कि कोई बकर रंग की मजलिस पढ़ के चला जाता हूँ मैं यहाँ से, मुझे नहीं समझ आती। मैं जुमला सोचा भी नहीं था, आपकी मोहब्बत कहना भी नहीं चाह रहा था। भाई जब खुलूस हो तो फिर सैटेलाइट से राब्ते होते हैं। जी बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जुमला पता नहीं कहाँ से आ गया। अब कंजूसी नहीं करता, कंजूसी नहीं करता। मेरे मुस्तफा जा रहे थे, नाका पे सवार थे, हिब्रुल उम्मा जनाब इब्ने अब्बास के हाथों में मुहार थी। तवज्जो फरमाइएगा, नाका की रसूल खुदा ने रुक गया, बनफ्स नफीस नीचे उतरे और रसूल ने जिंदगी में पहली दफा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 सजदे किए। मैं जुमला बहुत बड़ा कहना चाहता हूँ, 1 2 3 नहीं,
5 सजदे किए, हालांकि पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जब 5 सजदे करके, अब तवज्जो फरमाना, 5 सजदे करके इससे पहले, तवज्जो फरमाइएगा, इससे पहले कि मुस्तफा दोबारा नाके पे बैठे, एक दफा हिब्रुल उम्मा इब्ने अब्बास की तरफ देखा, होने से पहले जानने वाले मुस्तफा ने मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहा, ए इब्ने अब्बास, पूछना जो पूछना चाहता है। अल्लाह अकबर। वाह सल्लल्लाह। भाई तवज्जो फरमाना, ये जुमला फिर से, कुरान में एक ही बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सिफ्तें ऐसी हैं कुरान में जो एक ही वक्त में 2 बंदों के लिए नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, मुझे जो हुक्म मिला मैं उस पर आ गया। वाह वाह जो आपने फोन पे हुक्म किया था पहले मैं वो पढ़ रहा था। अपना पढ़े अपना। भाई तवज्जो, वाह वाह वाह। मैंने छोड़ दिया, छोड़ दे। याद रखिएगा, छोड़े। कुरान में 2 ऐसी सिफ्तें हैं वाह जो वाह। एक ही वक्त में एक बंदे के लिए नहीं है। अल्लाह जिसे साजिद कहता है उसे आबिद नहीं कहता। हाँ वाह जियो, वाह 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 जियो। जिसे अल्लाह साजिद कहता है उसे आबिद नहीं कहता, जिसे अल्लाह आबिद कहता है उसे साजिद नहीं कहता। जिंदगी रही, आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मुझे आपने याद भी करवाना है, जिंदगी रही, नेक्स्ट साल जब आऊंगा तो बिल्कुल सारी मजलिसी मौला पे पढ़ूंगा, इंशाल्लाह। मौला ज़ैनुल आबिदीन पे पढ़ूंगा। ये आपने मुझे फोन में हुक्म फरमाया था जो मैं पहले पढ़ रहा था, आप लाइव आके कह दिया, तो एक जुमला ले लीजिए, अल्लाह जिसे साजिद कहता है उसे आबिद नहीं कहता कुरान में, जिसे आबिद कहा है उसे साजिद नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में फरिश्तों को साजिद कहा है, आबिद नहीं कहा। वाह वाह वाह। नबियों को अल्लाह ने कुरान में आबिद कहा है। वाह 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 जियो शाह जी। कुरान में 2 ऐसी सिफ्तें हैं जो एक ही वक्त में अल्लाह ने एक बंदे को नहीं दी। जिसे साजिद कहा है उसे आबिद नहीं कहा, जिसे आबिद कहा है उसे साजिद नहीं कहा। अल्लाह ने फरिश्तों को साजिदीन कहा है, आबिदीन नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में नबियों को आबिदीन कहा है। भाई जुमला बहुत बड़ा है, जुमला बहुत बड़ा है जो आपने हुक्म फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में जिन्हें आबिद कहा है उन्हें साजिद नहीं कहा, जिन्हें साजिद कहा है उन्हें आबिद। खुदा की कसम, कायनात में वाहिद मेरा इमाम, चौथा इमाम है। अल्लाह ने सिर्फ साजिद नहीं कहा, सैयदुल साजिदीन कहा, आबिद नहीं कहा, ज़ैनुल आबिदीन। जियो शाह जी, जियो जियो शाह जी। या वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। भाई तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। छठे इमाम फरमा रहे थे क़यामत का दिन होगा, हश्र व नशर होगा, रसूल की तार दर किदार खड़े होंगे, नबी की तार दर किदार खड़े होंगे, कुतुब खड़े होंगे, वली खड़े होंगे। अब्दाल भाई कहा है ना, अगर कहा तो फिर सुनना, रसूल लाइन में खड़े होंगे, नबी लाइनों में खड़े होंगे, कुतुब लाइनों में खड़े होंगे, अब्दाल लाइनों में खड़े होंगे, और या अल्लाह खड़े होंगे, और आवाज़ें कुदरत आएगी, आईना आईना ज़ैनुल आबिदीन। वाह जियो जियो शाह जी। वाह। आईना आईना ज़ैनुल आबिदीन, आईना आईना सैयदुल साजिदीन। बताओ तुम में से ज़ैनुल आबिदीन को, रसूल एक दूसरे की तरफ देखेंगे और कहेंगे रसूल हम हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? तवज्जो फरमाना। रसूल एक दूसरे से मुखातिब होंगे और मुखातिब होकर पता है क्या कहेंगे? कहेंगे रसूल हम हैं, कि ज़ैनुल आबिदीन कौन है? नबी एक दूसरे की तरफ देखेंगे और कहेंगे नबी हम हैं। सैयदुल साजिदीन कौन है? छठे मौला फरमाते उतनी देर में मेरे दादा तशरीफ लाएंगे, जैसे ही मेरे दादा आएंगे ना, सारे खड़े भी हो जो हक अदा नहीं हो करता। पता पहला क्या काम करेंगे? रसूल और नबी सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। भाई तवज्जो फरमाना, सबसे पहले क्या करेंगे? ज़ियारत। और जिन्ना तो चेहरे की ज़ियारत रसूल करना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, खुदा की कसम मैं जुमला बहुत बड़ा कह गया। सबसे पहले क्या करेंगे? चेहरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, सबसे पहले इमाम के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? खुदा की कसम कुछ और नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे, हाँ इन्हें ही ज़ेबा देता है कि ज़ैनुल आबिदीन हो। चले आपकी मोहब्बतें तो एक जुमला और इमाम के एक और जुमला कहता हूँ।
अज़ाए सजदा है 7, अज़ाए सजदा है, तवज्जो फरमा ले, अज़ाए सजदा कितने हैं जी? 7 अज़ा अगर जमीन पे लगे तो फिर सजदा होता है। अज़ाए सजदा है 7, जिसके अज़ाए सजदा पे भी सजदों के निशान हो। नहीं समझे? नहीं, मैं नहीं समझा सका, जुमला कहता हूं। साजिद किसे कहते हैं? नहीं तवज्जो ना, साजिद किसे कहते हैं? जो पाक जमीन तलाश करे ना कि मुझे पाक जमीन मिल जाए और मैं सजदा करूं, उसे साजिद कहते हैं। और जिसके सजदे का इंतजार जमीन करे। एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो जी, बिस्मिल्लाह। एक जुमला सुन लो भाई, एक जुमला सुन लो। सही तो साजिदीन का एक सजदा मैं बताऊं। वाह वाह, जियो शाह जी जियो। किसी पे बात तमाम हो जाती है। एक सजदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में, और जब ये सजदा करते हैं ना, तवज्जो फरमाइएगा, जब ये सजदा करते हैं ना, सजदा फिर पता नहीं होता ये 2 घंटे का सजदा या 5 घंटे का। जब ये सजदा करते हैं फिर पता नहीं होता ये कितने घंटे का सजदा है। और मैं जुमला कहता हूँ, नमाज क्या है? मोमिन की मिराज है ना, अस्सलातो मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है ना। मिराज जमीन पे नहीं होती, वहां पे होती है। नहीं नहीं नहीं, आप गल मैंने खोल नहीं पै गई है ना, बंदे पीछे रह गए। मौला सजदे में, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर कुएं में गिर गए। ओहो, बेटे हैं बहुत छोटे, कुएं में गिर गए। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम कुएं में गिर गए। इमाम माँ थी ना, जल्दी से वहां पे गई जहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदा कर रहे थे। वो सजदा कर रहे थे, ये इमाम की ज़ौजा जो है ना, वो आवाज दे रही, मौला आपका बेटा कुएं में गिर गया। जैसे जैसे आवाज देती जा रही है, सजदा लंबा होता जा रहा है। अच्छा, अगर इस तरह से सुने तो फिर इससे बड़ा जुमला कहते हैं। ये माँ कौन है? माँ कोई आम नहीं है। पहले इमाम की पोती है, दूसरे इमाम की बेटी है, तीसरे इमाम की भतीजी है, चौथे इमाम की ज़ौजा है, पांचवें इमाम की माँ है, छठे इमाम की दादी है। वाह वाह वाह, जियो शाह जी जियो, नारे हैदरी। वाह वाह, तवज्जो फरमाना। जैसे जैसे माँ कह रही है ना, माँ कह रही है 6 इमामों की रिश्तेदार है, और माँ कह रही है ना, बेटा आपका गिर गया। मौला बेटा सजदा तवील होता जा रहा है, तवील होता जा रहा है, तवील होता जा रहा है। जैसे सजदे से सर को उठाया ना, आंखों में आंसू थे। मौला कहते क्या हुआ? कहा मौला आपका बेटा कुएं में गिर गया। मौला आपका, मैं कब से आपको आवाज दे रही। मौला कहते तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है। जब हम सजदे में होते हैं, जिस्म यहाँ पे होता है, हम वहां पे होते हैं। क्या तुझे पता नहीं है, जब हम सजदे में होते हैं, हमारा जिस्म यहाँ पे होता है, हम वहां पे होते हैं। मौला आपका बेटा गिर गया। तो मौला कहते परेशान क्यों होती हो? नहीं, तवज्जो फरमाना। आखिरी जुमला फैल गया तक, तवज्जो फरमा। मौला गए, जैसे ही मौला गए ना, अब तवज्जो फरमाना। खुदा की कसम सारे खड़े होकर भी नारे मारते रहो। आखादारी बोला वहां पे गए जहां पे कुआं था। नजारा इमाम ने नजर पर कर देखा, कहा कुछ नहीं, पानी को इशारा किया। इमाम ने नजर पर कर देखा, कहा कुछ नहीं, पानी को इशारा किया। जैसे पानी को इशारा किया, पानी ऊपर आना शुरू हुआ। आते आते पानी वहां तक आया जहां तक किनारे पे। तवज्जो फरमाना, जहां तक किनारे पे। मौला आगे बढ़े, क्या देखा? मौला इमाम मोहम्मद बाकिर पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर है। नहीं, तवज्जो फरमाना। आखिरी जुमला कह रहे, क्या देखा? पानी के अंदर नहीं है, पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है। मौला ने एक दफा उठाया, सीने से लगाया, और ये कहते हुए मौला चल पड़े, तुझे पता नहीं ये भी हुज्जत खुदा है। तुझे पता नहीं ये भी। मैं बस करना चाहता था, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे कहा कि एक जुमला और कह दूं। कहें। अच्छा, ये माशाल्लाह 95% नौजवान तबका बैठा है ना,
اور چونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولا امام محمد باقر 3 یا 4 سال کے تھے، یا اس سے بھی چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، لیکن پانی کے اندر نہیں گئے، پانی کے اوپر تھے. نہیں سمجھے، مجھے کہنا پڑ گیا. خدا کی قسم یاد رکھ لینا کائنات میں یہ واحد گھر ہے جس میں عمر قید کوئی نہیں. میں جملہ کہہ گیا، کائنات میں یہ واحد گھر ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اس گھر میں بچپنے کا رواج کوئی نہیں. اس گھر میں پیچھے رہ گیا تو جملہ سن لینا. اس گھر میں بچپنے کا میں نہیں کہہ رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمانا، صغیرنا و کبیرنا سوا. اس گھر میں بچپنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. نہیں ہے نا رواج. اس گھر میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا. اس گھر میں چھوٹا بھی بڑا ہے. جیو شاہ جی. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کسی کا علم عروج مار جائے. میں اس کے لیے جو دعویٰ کیا دلیل لے کے جا رہا ہوں. اس گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. اس گھر میں بچپنے کا رواج نہیں. اگر نہیں سمجھ آئی، جو 13 رجب کو آیا تھا نا، اس نے 16 رجب کو پورا. اگر یہ بات ہے تو جملہ پھر ایک اور لے. بسم اللہ. اس گھر میں بچپنے کا رواج نہیں. جو 15 رمضان کو آیا تھا ادھر ماں مسلح پہ تھی. اس گھر میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا. جو 15 رمضان کو آیا تھا نا، آتے ہی ماں کی آغوش میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے دنیا کو بتایا تھا اس گھر چ نکے وڈے نہیں ہیں. چلے کنجوسی نہ کروں، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. بسم اللہ. اس گھر میں بچپنے کا رواج نہیں ہے. جو 3 شعبان کو آیا تھا، اس نے کائنات میں آتے ہی عرش والے کو پر دے کے بتایا تھا اس گھر میں چھوٹا کوئی نہیں. محمد علی محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس بھائی، غصہ اس امام کا ہے جو سید الساجدین. اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے، اللہ آپ کی ماتم کو قبول کرے. پروردگار عالم میرے بھائی کا یہ خلوص اہتمام اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرمائے. سید الساجدین ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں، معصوم کتنے؟ 14. امام کتنے؟ خدا کی قسم معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، لیکن سید الساجدین ایک. اعظم اللہ اجورنا. اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. اللہ میرے پیارے بھائی کا یہ خلوص اہتمام اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرمائے. اور میرے پیارے بھائی کی جو بھی نیک اور شرعی حاجات ہیں، پروردگار عالم انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. بڑے بڑے سجدہ گزار دنیا میں گزرے ہیں، لیکن سید الساجدین کا لقب نہیں ملا. میرے مصطفیٰ نے اس حالت میں سجدے کیے، طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر مارے، رسول کا لہو بہہ رہا تھا، اس حالت میں سجدے کیے، لیکن سید الساجدین کا لقب نہیں ملا. میرا مولا مشکل کشا ہر روز 1000 رکعت غیر واجبہ کے سجدے کیے، لیکن سید الساجدین کا لقب نہیں ملا. حسن نے اس رنگ میں سجدے کیے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، اس حالت میں سجدے کیے، لیکن سید الساجدین کا لقب نہیں ملا. اور حسین نے انتہا کر دی. حسین نے
ऐसा सजदा किया, हुसैन ने ऐसा सर सजदे में रखा, दोबारा हुसैन ने सर को सजदे से उठाया नहीं है। खुदा की कसम हुसैन आज भी सजदे में है, लेकिन सैयद साजिदीन का लक़ब नहीं मिला। और आज़ादारों, मुझसे पूछो फिर सैयद सज्जाद ने किस रंग में सजदे किए जो सैयद साजिदीन का लक़ब मिला। खुदा की कसम आज तक जितने भी सजदे थे ना, सारे के सारे मुसल्ले पे थे। सैयद सज्जाद ने कभी गर्म रेत पे सजदा किया, कभी जलते हुए खैमों में सजदा किया, कभी अली अकबर के सीने में लगे हुए पर्ची के फल को देख के सजदा किया, खुदा की कसम कासिम के लाश के टुकड़ों को देख के सजदा किया। अज़ादारों, मुझे माफ करना, कभी बाजार शाम में बदमाशों के मजमे में, शराबियों की भीड़ में, कभी माओ के नंगे सर देख के आज़मल्लाहु अजूरना। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे, अल्लाह तेरे मातम को कबूल करे। अज़ादारों, जब ये लुटा हुआ काफिला गया है ना दरबार इब्ने ज़ियाद में, अज़ादारों जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये काफिला पहुंचा ना, एक बंदा मौला ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और आके कहते, मौला अजीब इत्तफाक ऐसा है, जब मुस्लिम इस दरबार में आया था ना, मैं उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद था मौला, मैं आज भी यहाँ पे मौजूद हूँ मौला, लेकिन फर्क बहुत देख रहा हूँ मौला। मुस्लिम के हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ियां थी, कमर में लंगर था, गले में तौक था। मैंने देखा मुस्लिम के लब कटे हुए थे, मैंने देखा मुस्लिम का सर कटा हुआ था, मैंने देखा मुस्लिम जख्मों से चूर चूर था, लेकिन मौला मैंने देखा मुस्लिम की गर्दन तनी हुई थी, सर उठा हुआ था। मौला वो तेरे बाबा का सफीर था। मौला तू वक्त का इमाम है, तू हुसैन का बेटा है, तेरी गर्दन क्यों झुकी है? अज़ादारों माफ करना, ऐसे लगा खुदा की कसम, ऐसे लगा जैसे गयूर इमाम के, बीमार इमाम के जख्मों पे किसी ने ताजियानों की बारिश की हो। मौला तड़प के कहते खून बढ़ गया, रो के कहते तूने इंसाफ नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जब मुस्लिम आया था, मुस्लिम के साथ उसकी माएँ न थी, मुस्लिम के साथ उसकी बहनें न थी, मुस्लिम के साथ उसकी बेटियां न थी। अब वो कैसे ज़ैनुल आबिदीन कैसे सर को उठाए? मैं जैसे ही सर को उठाता हूँ ना, कहाँ पे मां नंगे सर नजर आते, कहीं पे फुफियां नंगे सर नजर आती, कहीं पे बहने खुदा की कसम खून रोते थे। मदीने में एक बंदे ने कहा, सज्जाद मरना सबने है, शहादत आपका विरस है, खून क्यों रोते हो? खुदा की कसम मौला तड़प गए और कहते हाँ मरना सबने है, शहादत हमारा विरस है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता, शराबियों के दरबार में, बदमाशों के मजमे में, नौके निज़ा से सर से चादर का उतरना भी हमारा विरसा है। नंगे सर शराबियों के दरबार में। मौला कहते तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ जुदा हो गया था, जब तक जिंदा रहा इतना रोया, आंखें सफेद हो गई, और जिसके सामने 18 फखरे यूसुफ आज़मल्लाहु अजूरना। ना करो तबीर आज़ादारो, जब भी हुक्म मिला ना, जब भी हुक्म मिला तो बीबी अपना गला ज़ैनुल आबिदीन के गले पे रख देती। क्या भूल गए शामे गरीबा? जब अजर रिसालत दे के जीना ना पड़ा कलमा पढ़ने वालों का, फिर पता है क्या किया? रसूल की बेटियों के खैमों को आग लगाई। जैसे ही खैमों को आग लगनी थी ना, हमीद इब्ने मुस्लिम रवायत करता है, हमीद कहता है मैंने क्या देखा, एक खैमा है जिसके अंदर बीबी कभी आती है कभी बाहर जाती है, पसीने में लथपथ बीबी थी। मैंने कहा बीबी लगता है तुम्हारी कोई कीमती चीज रह गई है, बीबी मुझे हुक्म फरमा। लेकिन बीबी ने क्या किया? कहता मैंने देखा अपनी पुश्त पे गरीब बीमार इमाम को उठा कर ले रही, एक दफा गर्म रेत पे लिटाया, रुख मक्तल की तरह मुड़ गया, रो के कहती है हुसैन देख, अकबर का लाशा उठाना आसान काम था, जलते हुए खैमों से आज़म अल्लाह अजूरना। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे, अल्लाह तेरे पुरसे को कबूल करे, अल्लाह मेरे प्यारे भाई का ये पुखलूस है तमाम अपनी बारगाह अक़दस में मकबूल मंजूर फरमाए। अज़ादारों, ये 25 मुहर्रम थी। अल्लाह लानत करे वलीद इब्ने मलक ने जब जहर दिया है ना, जहर दिया है तो मेरे मौला के जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे थे। ये फितरती अमल है, जब माँ बाप पे मुसीबत आती है ना, या बेटियां आ जाती है या बेटे आ जाते हैं, लेकिन ये पाक मिंबर
गवाह है, जैसे मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन को खुदा की कसम जहर मिला था ना, न किसी बेटी को बुलाया, न किसी बेटे को बुलाया। एक दफा रुख शाम की तरफ मुड़ गया, रो के कहता फुफी अम्मा जिसे हर जगह पे बचाती आई है ना, तेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन को जहर मिल गया है, जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे थे। एक दफा मौला बाकिर को पास बुलाया और कहा बाकिर यहाँ पे बैठ और मुझे बता क्या तू करबला में कितने साल का था? कहा मौला मैं 4 साल का था। कहा बता तूने क्या देखा? बाकिर रो रो के कह रहे थे बाबा मैंने देखा मेरा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा उठा के ले आया। बाबा मैंने देखा मेरा दादा हुसैन मेरे चचा कासिम के टुकड़े उठा के ले आया। बाबा मैंने देखा, अदादारा मुझे माफ करना नहीं तवील पढ़ सकता, पता है किस जुमले पे मेरे मौला की शहादत हुई? मौला मोहम्मद बाकिर कहते बाबा मैंने देखा खूली ने एक दफा मेरी दादी ज़ैनब की चादर में हाथ आज़म अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे। कमीना खूली खैच रहा था, मेरी दादी नहीं छोड़ रही थी। एक दफा ऐसा ताजियाने का वार किया, मेरे दादी का सर फट गया, खून का फवारा उबला। एक दफा नहरे फुरात की तरफ रुख मुड़ गया, रो के कहती है गाजी जिसके पर्दे का तो ज़ामिन था। आखिरी जुमला सुन लो, ओ गमे हुसैन में रोने वालों, सिवाय गमे हुसैन के तुझे कोई और गम नसीब ना हो। अज़ादारो आपने देखा होगा ना, जैसे ही गुस्ल कफन होता है ना, उसके बाद पता है क्या करते हैं, चाहे कोई माड़ा ही क्यों ना हो, गुस्ल कफन के बाद पता है क्या करते हैं, मरने वाले का जनाजा उसके घर के सहन में रखते और आवाज दे के कहते इसकी बेटियों को बुलाओ। आवाज दे के कहते हैं इसके बेटों को बुलाओ। मैं हाथ बांध के कहती हूँ दुआ करो, अगर अल्लाह किसी को 10 बेटे दे ना, 10 बेटे दे, अल्लाह एक बेटी जरूर दे। बेटियां जनाजों की बारिश होती है, अल्लाह ना करे रात के 2 बजे हो और किसी गरीब का दूर रहने वाला बाबा फौत हो जाए, दरवाजे पे जाती है, तकुल बाप करके कहती है मेरे साथ चलो, मेरा बाबा मर गया है। अज़ादारो जब कोई ना चले, अकेली चल पड़ती है, रो के सिर्फ इतना कहती है तुम चलो ना चलो मेरा तो बाबा। मैं हाथ बांध के कहूंगा ऐ मौला ज़ैनुल आबिदीन की बेटियों, आज जी भर के रोना, इसलिए कि जब तुम रोगी ना तुझे तमाचे मारेगा ना तुझे ताजियाने। हाय किस्मत हुसैन की बेटी सकीना की, जब भी बाबा का नाम लेती कोई थप्पड़ मारता। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यहुमुल कलबैन कलिबुन। दुआ करनी है या मातम डालना है? मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पढ़ लो यार।